Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. This is the second part to the show. Just before the break, I had a question regarding cash savings. So this is where the financial requirement of 18,600 is going to be met by way of cash savings. So there's not necessarily any income from employment that is going to be shown. And I said I'll just check the rules again when we take the break in terms of what specific evidence needs to be submitted where what's been relied upon is cash savings. And it is what I said before the break. There are two pieces of specific evidence that needs to be submitted. Firstly, 6 months of bank statements. But as I said, if the money has been there for a long period of time, probably better to submit the bank statements for the period of time that the money's been there. So that's the first mandatory requirement, that 6 months bank statements must be submitted. The second mandatory requirement is that a declaration must be submitted, like a document signed before a solicitor, ideally. A declaration is submitted which explains that the money is there, that the money belongs to the account holder, the person whose name the money is in, and it's not money that needs to be returned to anybody or anything of that nature. So it's the bank statements and a statutory declaration that needs to be submitted where somebody is relying on cash savings. So that's basically what I explained before the break anyway, but just to be on the safe side, I just checked the guidance during our break. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा, एक सर बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान इंडिया से कोई लड़की शादी करके, जैसे लड़कों मतलब वहाँ से लड़का आता है और वो जो लड़की है अगर वो उनसे मिसबिहेव करती है या उससे मारपीट करती है कुछ, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है, तो अब उसके लिए इनके लिए क्या लाया है कि जो मतलब कि वो खुद यहाँ पे आके वो एक परेशानी के आलम में रह रहा है और उसको बार बार ये धमकी दी जाए कि तुम्हें हम निकलवा देंगे, ये कर देंगे। तो जिस तरह लड़कियों के राइट्स है, क्या ये राइट्स मर्दों के लिए भी हैं? जी, वो राइट्स है ना, दोनों के लिए एग्जैक्टली द सेम है। आपने जो कहा ना कि लड़कियों को यहाँ वो प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ के अगेंस्ट, तो इन द सेम वे लड़के के लिए भी वो राइट है कि अगर लड़का प्रूव कर सके कि उसकी वाइफ ने या तो वाइफ के फैमिली मेम्बर्स ने उसको फिज़िकली मारा या तो मेंटली उसको अब्यूज़ किया है, और अगर उसका एविडेंस उसके पास है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस पे वो भी यहाँ परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे बहुत लड़कियाँ अभी कर रही है। अभी यूके में आते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पुलिस के पास वो जाते हैं, एविडेंस मिल जाता है उसको और वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन द सेम वे लड़के के लिए भी सेम है। इसमें मेन इशू क्या है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस टाइप केसेस है, इसमें मेन इशू क्या है, एविडेंस का है। इसमें एविडेंस चाहिए। I think that call's been dropped. So as I was saying, the main evidence in these type of domestic violence cases where the husband or wife comes from abroad, whether it's India, Pakistan, Bangladesh, come to the UK, and if they are in an abusive relationship, then they need evidence of that to be able to rely on the domestic violence provisions. But there are specific provisions there which they can rely on. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने इंट्री 3 पास किया हुआ है और मैं अप्लाई करना चाहती हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट और नेशनलिटी, और मैंने लाइफ इन यूके भी पास किया हुआ है, मुझे क्या मैं कर सकती हूँ? जी, सो आपने लाइफ इन द यूके पास कर लिया, ओके? हाँ जी। इससे पहले आपने कहा कि कोई और सर्टिफिकेट, वो क्या नाम दिया आपने? मैंने इंट्री 3 स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मगर वो जो कॉलेज है ना, उसका नाम क्या था? सिटी एंड गिल्स, क्या कहा हमने? सुननी सिटी एंड गिल्स है। अभी सिटी एंड गिल्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर आपने वो कब किया था ये सिटी एंड गिल्स? 2016 को मैंने पास किया था। 16 में आपने पास किया था,
और आपने जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, इंडेफिनेट के लिए, तो ये सिटी एंड गिल्ड सर्टिफिकेट आपने यूज़ की थी? नहीं ये यूज़ किया था आपने सिटी एंड नहीं, गिल्ड? मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया था। आपको कैसे, ऑन व्हाट बेसिस इंडेफिनेट मिला था आपको? वो 6 इयर्स, आपको जब इंडेफिनेट मिला था वो किस बेस पे मिला था आपको? मैं हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स वीजे पे बुलाया था। ओके, तो आपका इंडेफिनेट कब हुआ था? अबाउट अराउंड maybe 10 years ago। राइट, ओके, राइट, ठीक है। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है, जी लाइफ इन द यूके की जो सर्टिफिकेट है ना वो एक्सेप्टेबल है, राइट? मगर जो सेकंड सर्टिफिकेट है ना आपके पास, आपने कहा वो सिटी एंड गिल्ड्स वाली है ना वो सर्टिफिकेट, जी। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, तो मुझे B1 पास करना पड़ेगा? हाँ जी जी, 100% B1 पास करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ट्रेनर, मैंने बाद लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि B1 नहीं, कुछ लोगों ने रिसेंटली अप्लाई किया है, नहीं तो वो कहते हैं कि नहीं। B1 ना पास करें तो यही आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही चल जाएगा। नहीं, वो नहीं चलेगा, वो सर्टन वो चल सकता है मगर आपके सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो लोग के पास है जिसने इनडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था आफ्टर 2013। एक Okay. उसका रूल है कि रफली अक्टूबर 2013 के बाद जिसने इनडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, और वो टाइम पे जो सर्टिफिकेट्स चलती थी ना, सिटी एंड गिल्ड्स जो भी है, वो उसने यूज़ किया था और वो बेसिस पे उसको इनडेफिनेट मिल गया था। तो उसके लिए वो रूल है कि वो सिटी एंड गिल्ड्स की सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिस पे उसको आफ्टर 2013 उसको सेटलमेंट मिला था। आप वो रूल में नहीं आते, आपको इंडेफिनेट, रूल में नहीं आती। आपको इंडेफिनेट मिला था 10 साल पहले, रफली 2008 में, तो आपको ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता, अच्छा, आपको नहीं होता। आपकी बात सही है, कोई लोग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं सिटी एंड गिल्ड्स, उसका काम हो जाता है, मगर आपको नहीं होता, क्योंकि आपका जो इनडेफिनेट था ना वो अक्टूबर 2013 से पहले था। तो उसके लिए एज फार एज आई कैन रिमेंबर अक्टूबर 2013 वो लोग ये सिटी एंड गिल्ड्स की सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए जो उसके लिए तो अभी प्रॉपर सर्टिफिकेट करनी पड़ेगी आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपके कॉल के लिए। सो we had a caller just before this one which related to domestic violence, and what the caller was basically asking was, there is protection for women who come from abroad, India, Pakistan, Bangladesh, to the UK. They suffer domestic violence and there is protection from them. Is it the case that the same protection exists for men who come over from India, Pakistan, Bangladesh, or wherever it is that they come from? The basic position is that yes, the protection is the same, the law is the same. If somebody who's come over here, they have a spouse visa and they have been the victim of domestic violence, whether it's physical abuse, whether it's mental abuse, and this is the key thing, and there is evidence of that, evidence in the form of police, evidence from the police, doctor, court orders. So whatever evidence you've got, that's the key thing. Is if somebody is the victim of domestic violence and there is evidence of that, by all means it is absolutely possible, if the marriage has broken down, to make an application for indefinite leave based on domestic violence. That brings us to the end of the show. Inshallah, we should be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.